Bismillahirrahmanirrahim. Today we will continue our topic about Salam transaction. Uh, in last, you have studied about the Salam transaction with the help of this presentation PowerPoint, which was the basis of some content based on the course outline. AOF Sharia standard, AOF financial accounting standard, and SBP regulations. But currently, we will go since you have already somehow know how about these topics and understandings. So we will go towards the main sources which are mentioned in your course outlines. So we will go your course outline, your LMS, and in this LMS there are multiple links. Number one, this was the presentation which you have uh, learned in the last class, but right now we will go towards the original sources. Number one is Sharia standard, the standard number 10, Salam and parallel Salam. And furthermore, financial accounting standards by same organization, accounting and auditing for Islamic Financial Institution AOFI. This is the financial accounting standard number 7, Salam and parallel Salam. And similarly, there is also forward say delivery sales, which are Salam and Istisna. So this is also covered in the FAST 52. So we will use a tool for better understanding and better reading and learning specifically. This tool is called SQ3R tool. So first of all, we will go towards the link. We have to learn from this link. So this is the actually main source of your PPT to your PowerPoint. As per your course outline, you have to read this source. But if you see that this have multiple pages, multiple things in this document. So the reading word by word reading is not an easy task to accomplish. So we will use a technique which called SQ3R. For your ease and your understanding, we are using learning this tool by uh, the browser you know already, SQ3R. SQ3R method, reading technique, study method, reading method, basic system. So actually this is learning method because the reading is not the ultimate goal. Ultimate goal is learning. So by the help of this diagram, we can understand what is the meaning of SQ3R. Okay, so uh, we can visit. Okay, randomly I selected this link to understand because the picture is good. SQ3R meaning actually there are S, it is mean survey. Number two is Q, Q is question, and three R mean R. It means three time R. So survey means when we have to learn from a document, we have to survey, skim the text and find the main ideas. What can I learn from the text? So this is actually survey. When we want to learn about some document, we can survey about this. We can go through if there are some pictures, some headings.
some table of content, some tables, so we can skim and we can get some main idea what is about it. Number two is question. Think about what you already know about the topic and what do you know. Are what are missing concept with you. So survey, then question, then three are read. Look for answers to your questions. When we self questions that what we know, we realize that we know something, but we realize that we don't know many things. So we can create some questions. What is this? What it works and so on. So during the reading, we try to answer some question, and after the reading, decide, consider what you want to remember from information. You can close the book, you can close the document, or you can overall decide that we learn these five things, these four things, these three things from this document. And after that, you have to uh, reread your notes and link the information with your own experience. So it means recall, and mostly it can be done in after some time, some minutes, some hours, some days, some weeks, maybe. So this is technique, and this is a very uh, good technique. Uh, Initially, I remember सबसे पहले जब इस टेक्निक को मैंने सुना आज से कई साल पहले, तो ये सुना एक पोजीशन होल्डर स्टूडेंट के इंटरव्यू के अंदर पढ़ा, बल्कि स्टूडेंट का जो है वो इंटरव्यू था, और वो माशाल्लाह बैक वक्त कई यानी एक तरफ तो नॉर्मल तालीम हासिल कर रहे थे, दूसरी तरफ जो है वो दरस नामी यानी आलिम कोर्स की तालीम हासिल कर रहे थे वो स्टूडेंट। तो उनके इंटरव्यू में पढ़ा कि किस तरह एक टफ स्टडी के साथ साथ उन्होंने जो है वो अपनी मदरसे की टफ एजुकेशन के साथ जो है वो इंटर बोर्ड की पोजीशन हासिल की। तो उसमें उन्होंने तस्करा किया कि SQ3R मेथड को जो है वो मैंने यूज किया था। तो ये एक जो है वो ऐसी टेक्निक है जो प्रैक्टिकली आपको काफी फायदा दे सकती है, न सिर्फ इस कोर्स में बल्कि दीगर कोर्सेज में भी और जिंदगी के दीगर मराहिल में भी इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम मूव करते हैं, अपना जो पहला लिंक हम ओपन कर चुके हैं। ये पहला लिंक जो है ये जस्ट हम जब हमने इसको ओपन किया तो हमें पता चला कि ये जो है हमारे पास डॉक्यूमेंट है सलम और पैरेलल सलम के नाम से, शरिया स्टैंडर्ड नंबर 10। इसमें जब हम इसको सर्वे करने जाएंगे, तो सर्वे करने के लिए जो है वो हम इसकी जस्ट हेडिंग्स देखेंगे। सलम के हवाले से हम ऑलरेडी जान चुके थे पिछली क्लास में कि सलम जो है वो एक ऐसी सेल ट्रांजैक्शन है जिसमें एडवांस पेमेंट जो है वो हो रही होती है, और फ्यूचर में डिलीवरी होगी। और इसके साथ साथ जो है वो स्पेसिफिक गुड्स, होमोजीनियस गुड्स होनी चाहिए, ऐसी गुड्स होनी चाहिए जिसकी सिमिलर चीजें जो है वो इजीली अवेलेबल हो। होमोजीनियस जिसको हम कहते हैं, अरबी में हम इसको मिसली अशिया कहते हैं, जिसकी जैसी चीजें, मिसाल जैसी चीजें जो है वो मिल सकती है, जैसे गंदम, चीनी, चावल वगैरह। लेकिन सिर्फ ज़रात से, ये एग्रीकल्चर से रेलिवेंट नहीं है, बल्कि इसको दीगर जगहों पे भी यूज किया जा सकता है। इसमें सर्वे के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे पास इस डॉक्यूमेंट के अंदर कंटेंट का टेबल है, टेबल ऑफ कंटेंट। इसमें जो है वो हमें स्टेटमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स के अंदर जो है वो मिल जाएगा स्कोप ऑफ द स्टैंडर्ड। इसका मतलब ये होता है कि कौन सी चीज़ें, कौन से मामला इस स्टैंडर्ड के अंदर शामिल है और कौन से शामिल नहीं है। इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सलम जो है वो हमें एक इसके जरिए पता चलेगा कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किस तरह का इसका हो सकता है। सब्जेक्ट मैटर जो है वो क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। चेंजेस टू अल मुस्लिम फी। अल मुस्लिम फी जो है वो उस सब्जेक्ट मैटर को कहा जाता है जिसमें सलम किया गया है। सही है, सब मुस्लिम फी, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सलम आप इसको कह सकते हैं इंग्लिश में। इसी तरह डिलीवरी ऑफ अल मुस्लिम फी जो है ये उसकी डिलीवर होने के पर्सपेक्टिव में है।
और इसी तरह इसके बाद जो है पैरेलल सलम, जैसा कि हम प्रीवियस वीक में स्लाइड्स में पढ़ चुके हैं कि एक सलम अस्सलाम वालेकुम ट्रांजैक्शन सर। के साथ साथ। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्विज अभी मिस हो गया, मैंने आपको बताया था ना, मैं अभी ऑफिस के अंदर था, इस वजह से मैंने क्विज नहीं दे पाया था। तो अभी आप 10 मिनट अच्छा, के अभी लिए खोल क्लास देंगे? रिकॉर्ड हो रही है तो क्लास को फोकस कर लें। पैरेलल सलम के हवाले से हमने जाना था कि एक तरफ जो है वो इसमें एक पार्टी से सलम जो है वो कोई चीज अगर परचेज कर रहा है तो वही चीज सेल करने के लिए जो है वो किसी दूसरी पार्टी से सलम ट्रांजैक्शन पैरेलल में साइन कर सकता है। लेकिन जरूरी क्या है कि दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्कुल इंडिपेंडेंट हों, दोनों का बिल्कुल सेपरेट मामलात हों। और इसके साथ जो है वो सलम सुकूक इशुएंस जो है इश्यूज के सलम सुकूक जो है वो अगर इशू करते हैं और उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या इश्यूज आ सकते हैं, तो सलम सुकूक के हवाले से जो है वो हमें इसमें मिल सकता है। इसी तरह डेट ऑफ इशुएंस ऑफ द स्टैंडर्ड। अब यहाँ पर ये जो शरिया स्टैंडर्ड्स हैं इसकी भी इस डॉक्यूमेंट के जरिए हमें नो हाउ मिलेगी कि ये इसका तरीक़ेकार क्या होता है। आमतौर पर एक शरिया स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट अगर आपने समझ लिया तो बाकी को समझना इतना मुश्किल नहीं होता। इसका तरीक़ेकार आमतौर पर इस तरह होता है कि ये शुरू में आपको ये कुछ चीज़ें स्कोप ऑफ द स्टैंडर्ड और उसके कुछ हेडिंग्स बताएगा। उसके बाद ये जो है डेट ऑफ इशुएंस ऑफ द स्टैंडर्ड कि कब ये स्टैंडर्ड शरिया स्टैंडर्ड कब इशू हुआ, कब नाफिज अमल हुआ। और फिर इसके साथ साथ जो है इसकी अपेंडिसेस के अंदर ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स, पहली मीटिंग कब हुई थी शरिया बोर्ड की और उसमें क्या चीज़ें तय हुई, फिर दूसरी कब हुई, तीसरी कब हुई। इसी तरह अपेंडिक्स बी में हमें पता चल रहा है कि शरिया बेसिस फॉर द स्टैंडर्ड, जो इस स्टैंडर्ड के अंदर बातें की गई हैं, जो उसूल बयान किए गए हैं, जो क्लॉजेस लिखी गई हैं, क्योंकि एक लॉ के शिकल में है तो उसकी शरिया बेसिस क्या है, उसके उसूल और ज़ाब्ते क्या हैं। और लास्ट में जो है वो हमें डेफिनेशंस मिलती हैं। तो ये जो है ये इसका स्टैंडर्ड्स का शरिया स्टैंडर्ड्स, आप मुराबा का उठा लें, आप इस्तिस्ना का उठा लें, सलम का उठा लें, क्योंकि आपके जो है वो कोर्स आउटलाइन के अंदर मल्टीपल स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं। तो लेकिन इस तरीक़ेकार को अगर यूज़ करते हैं, कंटेंट के टेबल को अगर समझ जाते हैं, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आप बहुत सारी चीज़ें इजीली समझ जाएंगे। तो इसको जस्ट अब हम गो थ्रू करते हैं सर्वे ताकि कंप्लीट हो, क्वेश्चंस करते हैं और उसके बाद रीडिंग का काम जो है वो आप लोगों ने खुद करना होगा। हमारी ये वाली वीडियो रिकॉर्डिंग जो है ये 5 मिनट में ख़त्म होगी। इसके फौरन बाद दूसरा लिंक LMS पे भी मौजूद है, लिंक 2 के नाम से, और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी दे दिया जाएगा। तो दूसरे लिंक से फौरन ज्वाइन करना होगा। तो हम कोशिश करते हैं सर्वे और क्वेश्चन वाला काम जो है वो इसमें और इसी 5 मिनट के अंदर निपटा दें ताकि नई चीज हम नई वीडियो में शुरू करें। स्टेटमेंट ऑफ स्टैंडर्ड जो है ये पूरी हेडिंग है। इसमें पहला जो है स्कोप ऑफ द स्टैंडर्ड है। स्कोप का मतलब क्या है कि क्या चीजें इस स्टैंडर्ड के अंदर शामिल हैं और क्या चीजें शामिल नहीं है। इसको अगर हम हल्का सा देखें, दिस स्टैंडर्ड कवर्स सलम एंड पैरेलल सलम ट्रांजैक्शन वेदर द इंस्टीट्यूशन इज द बायर और सेलर। सही है। बैंक, क्योंकि ये AOFI जो है अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए जो है वो वजूद में आया था, तो ज्यादातर उन्हीं की बात कर रहा होता है। इसमें बैंक भी शामिल है और दीगर इंस्टीट्यूशन भी। तो ये इंस्टीट्यूशन यानी इदारे, बैंक भी जिसमें शामिल है, ये बायर है या सेलर है, दोनों सूरतों में ये स्टैंडर्ड उसको कवर करता है। और इसी तरह सलम सुकूक किसी हद तक जो है इसमें बात आती है, अगरचे वो अलग से भी स्टैंडर्ड मौजूद है। दिस स्टैंडर्ड डज नॉट कवर इस्तिस्ना, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लायर कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज द लेटर इज कवर्ड बाय अ सेपरेट स्टैंडर्ड। इस्तिस्ना जो है अगरचे सलम के जैसा ही है, लेकिन उसके लिए एक सेपरेट स्टैंडर्ड हमारे पास मौजूद है। वो इसके बाद वाला स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड नंबर 10 है। और स्टैंडर्ड नंबर 11 जो है 11 जो है वो हमारे पास सलम का मौजूद है। अब इसके सर्वे की कंटिन्यू करते हुए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सलम के अंदर अगर हम देखें तो अब इसको समझें। जिस तरह लीगल क्लॉजेज होती है इसी तरह 1 के अंदर सब क्लॉज कोई नहीं है, लेकिन 2 के अंदर जो है सब क्लॉजेज मौजूद है। 2 जो है कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से है। अब 2/1 का मतलब ये है कि जनरल फ्रेमवर्क फॉर सलम कॉन्ट्रैक्ट, सलम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जनरल बातें क्या होंगी। तो 2/1/1 हर पैराग्राफ को इन्होंने नंबरिंग दी हुई है ताकि रेफर करना आसान हो जाए। आप रेफर कर सकते हैं कि क्लॉज 2 का जो सब क्लॉज है 1 और उसका जो है सब क्लॉज 1, सब सब क्लॉज 1 है। तो इसके थ्रू जो है वो चीजें
हम रेफरेंस करना आसान हो जाता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट के जनरल फ्रेमवर्क को वाजे कर रहा है, इसको आप लोग फिर पढ़ सकते हैं बाद में। और इसी तरह जो है वो फॉर्म ऑफ अ सलम कॉन्ट्रैक्ट, सलम कॉन्ट्रैक्ट किस तरह जो है वो वजूद में आ सकता है, इसको जो है वो यहाँ पर देखा जा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सलम में भी कंक्लूडेड यूजिंग द वर्ड सलम, सलम का वर्ड भी यूज किया जा सकता है। इसी तरह इसमें एक सलफ का वर्ड भी जो है वो यूज किया जाता है, वो भी किया जा सकता है। और सेल का, यानी आपने सलम या सल्फ का वर्ड यूज नहीं किया, लेकिन खाली सेल ट्रांजैक्शन की, लेकिन उस सेल ट्रांजैक्शन की जो करेक्टरिस्टिक्स थी वो सलम से मिल रही थी, यानी एडवांस पेमेंट थी, फुल पेमेंट एडवांस में थी, सब्जेक्ट मैटर फ्यूचर में डिलीवर होना था, तो उस सेल ट्रांजैक्शन को भी सलम के उसूल ही अप्लाई होंगे। और एनी टर्म दैट इंडिकेट सेल ऑफ प्रिस्क्राइब्ड कमोडिटी, यानी ये होमोजेनियस प्रोडक्ट की बात कर रहा है, फॉर डेफर्ड डिलीवरी इन एक्सचेंज फॉर इमीडिएट पेमेंट ऑफ द प्राइस। तो ये बेसिकली जो है ये उसकी डेफिनेशन है, क्लास हमारे सामने आ गई। अगर से बिल्कुल फाइनल प्योर डेफिनेशंस जो है वो एंडिंग पैराग्राफ में, एंडिंग सेक्शन के अंदर हमने टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर देखी कि बिल्कुल एंडिंग में जमीमा नंबर 3 के अंदर जो है वो मौजूद होगा। नेक्स्ट इसी तरह सब्जेक्ट मैटर ऑफ सलम के हवाले से जो है वो हमें यहाँ कुछ उसूल और ज़ाब्ते मिल रहे हैं। कैपिटल ऑफ सलम कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स कंडीशंस, ये सारी चीज़ें जो है ये हमें इसमें थ्री के अंदर सब्जेक्ट मैटर की बात है और फिर कैपिटल की बात स्पेसिफिक आ गई। तो कैपिटल से मुराद यहाँ पर क्या होगा? कैपिटल से मुराद ये होगा जो पहले पेमेंट हो रही है वो कहलाती है अमाउंट ऑफ सलम कह लें या कैपिटल ऑफ सलम कह लें। ये जो है वो सारी चीजें इसके सब क्लॉजेज में आ रही हैं। फिर इसी तरह अल मुस्लिम फी एंड इट्स कंडीशन, अल मुस्लिम फी मैंने बताया आपको कि वो सब्जेक्ट मैटर को कहा जाता है, अरबिक नेम है अल मुस्लिम फी, यानी जिसमें सलम हुआ है, जिस चीज में सलम हुआ है यानी सब्जेक्ट मैटर, और उसकी क्या कंडीशंस हो सकती हैं ये हमें क्लॉजेज में यहाँ पर मिल सकती हैं आराम से। सही इसी तरह सिक्योरिटी फॉर अल मुस्लिम फी, बाज औक़ात चूंकि सलम में जो सेलर है वो हाई रिस्क पे है, बायर है वो हाई रिस्क पे है, क्योंकि फुल पेमेंट एडवांस में दे दी, लेकिन अभी सामान का कुछ अता पता नहीं कि सामान जो है वो कब मिलेगा, मिलेगा भी नहीं मिलेगा। तो ऐसे उसमें जो है वो सलम का सब्जेक्ट मैटर जो है वो यहाँ पर मैटर करता है। तो यहाँ से इसको जस्ट हम कंक्लूड अगर करें ये पैरेलल सलम, और इसी तरह एक आइडिया आपको हो गया कि किस तरह इसको पढ़ा जा सकता है। सलम सुकूक इश्यूज की हमें बता रहा है, इश्यूज क्या क्या इशू है इस पे जो है ये बता रहा है कि इसमें सलम सुकूक में चूंकि डेट क्रिएट हो जाएगा तो वो सलम